प्रिय और आपका आज की वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, इसकी सजेशन हमें दी है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता, विल स्मिथ एंड जय शेट्टी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग हमारे लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। You even brought Arjun in my life more to life. So tell me a bit about why Arjun was so synonymous with you. The circumstance that he was in, for people that don't know, Arjun is in a battle. His family has tripped out. He's a wonderful archer. He's the best archer in the world, and his family trips out and take the kingdom, and they're like, they snatch his wife and they're trying to disrobe his wife, and he's looking like, yo, what are y'all jokers doing? Like, and he comes home and he's like, and they seize the kingdom, and he can't believe that they have done this. And he's a warrior, and he could get the kingdom back, but these are his uncles and his brothers-in-laws and his teachers and people that he loved and trusted, and they took his kingdom. And they prepared an army, and they're going to fight Arjuna, and he's devastated that his family and his friends and all of that for material gain would do this to him, and he's deeply pious. And they prepare an army, the greatest army that's ever been assembled, except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. right? And they think they're going to tear through Arjuna, they're going to do all of this, but God is driving Arjuna's chariot, right? And even in that, Arjun, he's like, how can me killing all of my family be the right answer, right? And on the other side of that, he's like, well, I'll just let them kill me. I'm not doing that. There's no version of me going into battle with them. I don't care how wrong they are. I don't care. And as I just got deeper and deeper into that story, it's like, I feel like that all the time, right? I feel like I'm in what Radhanath Swami referred to as a perplexing situation. And I just really related to how the Gita handles those kinds of perplexing situations, and recognizing that's what life is. You are born into a perpetual perplexing situation, and that it was the first time that I'd ever heard the spiritual idea like that life is a perplexing situation, and you're never going to get around being stuck in the duality. You have to elevate above the whole thing, and the Christian concept about that I always heard and never understood fully. My grandmother would say all the time, you got to let go and let God. Yeah. Right? Yeah. And it was like that. It just, the Gita filled in that concept of what it really means. It doesn't mean don't do anything. Yeah. Let go and let God doesn't mean don't do anything. Yeah. It means do your divine duty, whatever that may be. And just for whatever reason, the study of the Gita at this particular point in my life really clarified a lot of ideas of how to move through a world where
you almost can't do it right. Right? And it's like there's God's playing a practical joke, right? And when you start seeing, that there's a trick in there, and the Gita illuminated that trick for me in a way. I was like, how could I be the biggest movie star in the world, be the best at all of this, and how you not love me? Right? And how was my family miserable? And it's like, that's the trick. इंसान की ज़िंदगी में जो है ना अप एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं, और जो उतार चढ़ाव होता है ना ज़िंदगी का, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपकी फैमिली। और जब महाभारत मैंने देखी थी ना, तो उससे पहले नो डाउट देखी हुई थी, टीवी पर लगती थी, तो बीच बीच में से देखते थे, तो इतना आइडिया नहीं था होता। लेकिन जब हमने जो है कुछ चैप्टर्स उसके देखे, फिर उसके बाद जो है हमने एनिमेटेड फॉर्म में देखी, तो अपनी फैमिली के खिलाफ लड़ना जो है वो मुझे जहाँ तक लगता है अपनी इंसान की लाइफ का ना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक लेसन हमें मिलता है महाभारत से वो यही है कि आपको अपना धर्म पूरा करना है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, चाहे आप कितनी भी मुश्किल टाइम में हो या आपके सामने आपके अपने ही क्यों नहीं खड़े, वो गलत हैं, तो भी आपको अपनी ड्यूटी सही करनी है। और मैं इन चीज़ों को इस तरह से रिलेट कर पाती हूँ ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कि क्योंकि हम लोग अपने रिश्तों में ना कहीं पर चूक जाते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने हमारे रिश्ते, करीबी रिश्ते खड़े हैं ना, तो हम लोग थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जहां से प्रॉब्लम्स फिर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि यही हम लोगों को टीचिंग्स महाभारत में दी गई है कि आपको चूकना नहीं है, वहां पर भी आपको इंसाफ करना है, क्योंकि अगर आप इंसाफ करोगे तो चीज़ें आगे मज़ीद ख़राब नहीं होंगी। लेकिन अगर आप ढील देते जाओगे और ज़्यादा एक लेवरेज मिलता जाएगा अगले बंदे को, तो मुझे लगता है कि उससे हम लोगों को अभी भी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, डिफरेंट रिश्तों की सूरत में देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स हम लोग को देखनी पड़ती हैं। दूसरा, मैं विल स्मिथ जी की बात करना चाहूँगी कि क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था ऑस्कर पर, और उसके बाद मैंने सुना भी था कि वो इंडिया में आए हैं मेडिटेशन और योगा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि मे बी उनको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। और वो एक, मैं कहूँगी कि एक इस तरह का शायद उनका रिएक्शन था, क्योंकि उनकी वाइफ भी जो है वो ठीक नहीं है, तो मे बी उस वजह से आपको समटाइम्स आपका रिएक्शन ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इम्प्रॉम्प्टू होता है, कि आपको समझ नहीं आती कि मेरे से हो क्या गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर भी शायद आपको गिल्ट होता है, उसको खत्म करने के लिए आप वाकई में ऐसा होता है कि आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होते हो, आप अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए। यार इंसान की जो है ना सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो अपनी गलतियों को जब रियलाइज करता है ना, तो वो जो है ना फिर ऐसे सोर्सेज, ऐसे रास्ते तलाश करना शुरू करता है जहां से जो है ना उसके दिल को एक सुकून मिले। और मेरा ख्याल है कि जो टाइम चल रहा है, नो डाउट ये कलयुग का टाइम है, ठीक है ना, बल्कि मेरा ख्याल है उससे भी अब कह लें टाइम जो है वो ज्यादा बुरा जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें अजीब ही तरह की एक रिश्तों में कश्मकश आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो इस टाइम में जो है ना अपने यानी कि खुद को एनालाइज करना कि मेरे अंदर क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, वो बहुत कम लोगों में जिगरा होता है। वरना मोस्टली लोग जो है ना जिस एक ट्रैक पर लगे होते हैं ना, उसी ट्रैक पर जो है वो चलते रहते हैं, और लिटरली उस ट्रैक पर उसके दोस्त, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट भी करते हुए आप देख सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि टाइम कुछ इस तरह के लोगों को गलत जो है वो गलत लगता ही नहीं है। वैसे मैं अगर महाभारत की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर आप इसको गौर से और थोड़ा खुले दिमाग के साथ, मैं एक आउटसाइडर की बात कर रही हूँ कि जो मतलब शुरू से जिसने फॉलो ना किया हो सनातन धर्म को, अगर आप उसको फॉलो करना शुरू हो जाओ, पढ़ना शुरू हो जाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स मिलती हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो रीज़न है उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ों का आपको पता चलता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यही लगती है कि आपके पास डिटेल्स हैं कि एक के बाद एक कि अब इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ना आपको वाकई में बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो एक तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आपको सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं पर आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं। और नो डाउट महाभारत जब आप देखते हो, क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं रही, लेकिन ये जब आप देखते हो तो आपको एक
ऐसे एक अपनायत सी फील होती है, क्योंकि उसमें जितनी भी स्टोरी है एक रिश्तों की जो आप देखते हो, उससे आप ऐसे देख रहे होते हो जैसे आप अपने आज के टाइम को कहीं ना कहीं पर दे रहे हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर इस दुनिया में शायद ही, शायद क्या ऐसा बोला था कि कोई सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना दुनिया में, वो सब महाभारत में डिस्कस किए गए हैं। सब बताए हुए हैं कि कोई किस तरह का इंसान किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के उसके रिएक्शन होते हैं और चीजें चलती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वाकई में आपको देखने का, पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब आप स्पिरिचुअलिज्म की साइड पर चलते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। आप चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको कोई रास्ता नहीं ना मिलता, जो कि आपको एक मैं कहूँगी जैसे आप गुरु नहीं आपको मिलता, तब तक शायद आप भटकते रहते हो। लेकिन जब आपको कोई एक उम्मीद की किरण, एक रास्ता, या कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको आपको लगता है कि हाँ मैं इससे कनेक्ट हो पा रही हूँ और ये मुझे अच्छी चीज़ें बता रहा है और ये मेरे में इनकी वजह से मेरे में चेंज आ रहा है, मुझे लगता है आपको उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, वैसे आजकल के तो वक्त में हमने जो गुरु को जो है ना एक टाइटल दे दिया मेंटोर का, ठीक है ना, कि हमें एक अच्छा मेंटोर जो है वो मिल जाए तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है लाइफ जो है वो इजी हो जाती है। लेकिन मेरा एक और यहाँ पे चीज मानना है कि जो एक गुरु होता है ना, उसका एक दर्जा, एक लेवल जो है वो अलग होता है, क्योंकि उनकी एक जिंदगी बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। मैंने बहुत सारे मेंटोर देखे हैं, लेकिन उनकी जो नो डाउट वो भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन वो जो है ना कुछ इस तरह से बताते हैं कि उसमें भी ना आपको कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी रह जाती हैं। लेकिन एक बंदा जो प्रॉपर नॉलेज के साथ होता है ना, जब आप उसके पास बैठते हैं ना, तो जो आपने एक बात की ना, पर्सनैलिटी में ठहराव आना शुरू हो जाता है, वो आपको आता है। वरना आपके अंदर जो है ना एक कश्मकश मची रहती है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ ना, तो लिटरली यहाँ पर आपको जो है ना लोग, मैं खासतौर पर अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग आपको आधे अधूरे नॉलेज के साथ मिलते हैं, और उसकी वजह से मुझे जो है ना लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सा जो है ना वो उनके अंदर कश्मकश जो है वो मुझे दिखाई देती है। और लोग जो है ना जिस तरह एक रिश्तों को लेकर चलना चाहिए, जिस तरह अगले बंदे के साथ बात करनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। आधे अधूरे नॉलेज इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातों का जवाब ही नहीं होता। लोग, जब हमारे जैसे लोग भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उनके दिमाग में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास उसका जवाब ही नहीं होता। वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही कहा हुआ है तो ऐसे ही फॉलो करना है। हालांकि जब हम किसी ऐसे इंसान की बात सुनते हैं कि जो हमें लॉजिकल आंसर करता है, तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, और फिर हम लोग मुझे लगता है कि आप खुद ब खुद उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हो। कुछ अर्सा पहले की अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी इतना, मेरा सोचने का नजरिया शायद खुला नहीं था, या चीजें देखने का नजरिया उस तरीके से नहीं था। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस जर्नी में मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मुझे आप लोगों की ईमेल्स के थ्रू हो, कमेंट सेक्शंस के थ्रू हो, वीडियोस के थ्रू हो, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने मिलकर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में कि मुझे बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत नई सोच के साथ मुझे चीज़ें जो है वो जानने का मौका मिला। तो मैं सीरियसली इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ, क्योंकि मैं जब यही चीज़ें दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ तो उनको भी समझ में आती हैं चीजें। मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उनको डाइजेस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। बट आई थिंक विद टाइम जब आप कोशिश करते रहते हो ना, तो चीजें जो है वो थोड़ा समझ में आ जाती है। बिल्कुल टाइम लगता है इंसान को डाइजेस्ट करने में, लेकिन जब आप उनके साथ दलीलें, यानी कि आप जो है विद प्रूफ कह लें या आप विद लॉजिक जो है बात करते हैं, तो वो समझ आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मुझे लोगों में एक और चीज जो है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो लोग हैं जिनके सामने आप लॉजिक रखते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं और उस चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर अपने बेसिस पर जो है वो रिसर्च उस पर करते हैं। एक मुझे जो है लोग इस तरह के यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि आप लॉजिकल उनसे बात करेंगे ना, वो उसे डाइजेस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप उनके मुताबिक बात ना करें। यानी कि आप उनके मुताबिक बात करें ना, वो कहेंगे हाँ ये बंदा मेरे मुताबिक बात कर रहा है, अब ये सही
किया है। मुझे ऐसा लगता है ना उसकी रीजन ये है कि आप में पढ़ाई लिखाई की कमी है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से मैं इस पॉइंट पर पहुंची। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको हमेशा डिफरेंट स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, सिर्फ आपको अपने रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। आपका फेथ जो है आप उसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप इतने फ्लेक्सिबल हों कि आप जो बाकी जो लोग फॉलो करते हैं फेथ को, उसको भी आप उसके बारे में स्टडी करें, पढ़ें, जानें और पॉजिटिव माइंड के साथ जानें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे आपके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप लोगों को अच्छे से समझते हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो। तो मुझे ये तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा जानोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं सोसाइटी में। और अगर आप अपनी हठधर्मी पर रहेंगे, जो कि मुझे भी बहुत सारे लोगों में नज़र आती है, तो फिर कभी भी चीज़ें जो है वो सही नहीं होती और हमें जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती रहती है और हम ये कहते हैं कि हम लोग इतना पढ़ भी रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। उसकी रीज़न ही यही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम लोग अपने अंदर से साफ नहीं होते। बिल्कुल। एनीवे, जय शेट्टी जी की मैं बात करना चाहूँगी कि मैं इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी बातें और मतलब शॉर्ट वीडियोस ये डालते रहते हैं, तो मतलब उनको सुनना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो अच्छा लगता है इनको सुनना। और बाकी विल स्मिथ की तो हम लोगों ने लास्ट जो मूवी देखी थी बैड बॉयज मूवी देखी थी, और आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। हाँ नहीं, एक्टर तो अच्छे हैं, बाकी जो आज की डिस्कशन है इसके बारे में जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।